one more topic, that is something called as SERP, right? SERP. This is the short form of search engine results pages, also known as SERP or SERPs, right? SERP, SERP, search engine result pages. And see why I am showing you this website rather than any note or slide, because see on this website, see the Google's SERP. Okay, पहले मैं आपको बता दूं कि SERP क्या है, સર ठीक है, then we'll discuss it. हाँ. તમારું રેકોર્ડિંગ ઓબીએસ માં જ થાય છે? મારું રેકોર્ડિંગ ઓબીએસ માં થાય છે? એટલે આ લોકો સૌનક સર ને ઈ બધા ઓબીએસ માં રેકોર્ડ કરે છે. OBS એટલે શું છે? હે? OBS means what? એટલે હું પૂછી જોઈશ, મને ખ્યાલ નથી. અમને જે રીતે કીધું છે એ રીતે હું કરું છું અચ્છા, એમ, હા તો રેવા દો ભલે. રાઈટ? પછી આઈ થિંક અમને આપણે ડાઉનલોડ. એમ કે કરો એમ. અચ્છા ચાલુ થઈ ગયું છે ને? હા, મને મેં નતું ચાલુ તો દેખાતું કરી કે. દીધું છે રેકોર્ડિંગ. હા થઈ આઈ ગયું, હવે રહ્યું સી. હવે થયું. હા, હા ઓકે 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 ઓકે, મેં ચાલુ તો કરી દીધું છે, રાઈટ? OBS શું છે જીગર? This is something new for me, હા? Can you please યુટ્યુબ elaborate? સ્ટ્રીમિંગ માટે યુઝ થાય છે, રેકોર્ડિંગ હા માટે હા હા યુઝ હા, થાય છે. સમજાયું જે સમજાયું વિન્ડો સમજાયું. દેખાડી હોય એ જ દેખાય. હા 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 હા, યસ 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 યસ. ઓકે ઓકે ઓકે. So, see what are the SERPs? Search engine result page are, okay, let me just, are Google's response to a user's query. So, जब भी कुछ भी आप यहाँ पे टाइप करो ऑन टू दी search engine page, let's say google.com, right? And here if you type anything, let's say SEO, right? तो ये SEO टाइप करके whenever you hit enter, so you will be presented with a page, right? ये पूरा पेज आपके सामने आ गया, right? Page number 1, right? Having having different types of information. तो ये है SERP, ये है SERP, SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ठीक है? जब भी आप कुछ टाइप करोगे ऑन एनी सर्च इंजन, राइट, तो सर्च इंजन आपको इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करेगा इन डिफरेंट डिफरेंट forms, right? Many types of information will be provided to you in one page, arranged in one page. So that page is called as search engine result page. जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पूरा पेज, ये पूरा पेज है सर्प, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ठीक है? नाउ माय क्वेश्चन इज कि यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स आपको दिखा रहे हैं, राइट, जितने भी ये मैप्स है, द लिंक्स टू वेबसाइट, राइट, न्यूज एंड अदर थिंग्स, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको मतलब यहाँ पे आई कहाँ से? व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस इंफॉर्मेशन? वेरी बेसिक क्वेश्चन, हाँ, दैट आई एम आस्किंग. ये इंफॉर्मेशन का सोर्स मतलब क्या है? कहाँ से ये इंफॉर्मेशन आपको प्रेजेंट की जा रही है? ગૂગલ કે ડેટાબેઝ છે. Exactly. This information is coming directly from the Google's database. ठीक है? And the algorithm will be applied to it, right? और उसके हिसाब से कौन सा रिजल्ट फर्स्ट डिस्प्ले होना है, कौन सा दूसरा डिस्प्ले होना है, राइट, कौन सा लास्ट में डिस्प्ले होना है, ठीक है? ये सब डिसाइड कौन करेगा? एक algorithm, राइट? और ये डिसाइड करने के लिए देर आर मेनी रैंकिंग फैक्टर, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, व्हेन इट कम्स, राइट? बट राइट नाउ सी दिस इज सर्प, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, जो आपको अभी यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है? और अब ये हमें जानना है कि यहाँ पे किस किस टाइप की इंफॉर्मेशन आपको गूगल दिखाता है कई बार, ठीक है? सो सी दिस इज द मोस्ट अपडेटेड आर्टिकल ऑन दिस सर्प, ठीक है? आपके बुक में बहुत ही पुराना है. सो दैट इज आई एम टेकिंग हेल्प ऑफ दिस वेबसाइट, राइट?
तो देखो सर्प में क्या होगा, कौन कौन सी चीजें आपको सर्प सर्प में दिखाई देती है। सो विल स्टार्ट विद दैट, राइट। सो देखो यहाँ पे फ्रॉम लेट्स से see you will be shown basically two types of information on the SERP। ये जो आपको दिखा रहा है ये SERP, ये आप दिख रहा है हाउ टू स्टार्ट अ वेबसाइट, राइट। तो यहाँ पे चार एड्स है, राइट। दिस इज एड, दिस इज एड, एड एंड एड, ठीक है। पहली चार जो आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रही है वो है एड, गूगल एड, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज पेड रिजल्ट, और लेट्स से टू पुट इट सिंपली एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। आप इसको एडवर्टाइजमेंट बोलो या पेड रिजल्ट, PAID, पेड रिजल्ट, ठीक है। दोनों एक ही बात है, right? So if I type the same query and let me see how to start a website, I think वही query थी, and let me see whether ads are appearing or not। हाँ आई, देखो यहाँ पे विक्स की एड यहाँ पे दिखाई दे रही है, राइट, एड। सो दिस इज एड, और लेट्स से पेड रिजल्ट, ठीक है, ओके। देन बिलो दैट you will see the organic result। व्हाट इज दैट, ऑर्गेनिक रिजल्ट मीन्स व्हाट। तो देखो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि पहले एड यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, एड एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। उसके बाद एक और टाइप की इंफॉर्मेशन है जिसको हम कहेंगे स्निपेट। क्या कहेंगे, यहाँ पे देखो लिखा लिखा है फीचर्ड स्निपेट्स, ठीक है। सो विल स्किप दिस पार्ट, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट लेटर, राइट। पर देखो सबसे पहले यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है वो है एड, राइट। बिलो दैट what is displayed to you is snippet। तो ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है ये है फीचर्ड स्निपेट, ठीक है। और उसके डाउन अंडर है पीपल ऑल्सो आस्क। अब ये जो है यहाँ पे ये चीज यहां से स्टार्ट होता है ऑर्गेनिक रिजल्ट। क्या इसको कहेंगे हम, ऑर्गेनिक रिजल्ट, ऑर्गेनिक रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे जो हाईलाइट किया गया है ना, पहले है एड, राइट। 4 एड्स यहाँ पे, मतलब एक टाइम पे 4 एड्स दिखाई दे रही थी इसी कीवर्ड के ऊपर, राइट। फिर है यहाँ पे स्निपेट, और फिर है यहाँ पे ऑर्गेनिक रिजल्ट, राइट, ऑर्गेनिक रिजल्ट। तो ऑर्गेनिक रिजल्ट क्या होता है, तो ऑर्गेनिक रिजल्ट मीन्स कि जो यहाँ पे जो आपको वेबसाइट दिखाई दे रही है, राइट, रैंक 1 के ऊपर या रैंक 2 के ऊपर या रैंक 3 के ऊपर, वो इंफॉर्मेशन को टॉप में लाने के लिए किसी ने कुछ पे नहीं किया है, राइट। देखो यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट आपको दिख रही है, राइट, हियर, यहाँ पे आपको वेबसाइट दिखाने के लिए आपको पे करना होता है, राइट। यू नीड टू पे इट, पे सम अमाउंट टू दी गूगल, राइट। तो ये है पेड रिजल्ट। बट ये जो ऑर्गेनिक रिजल्ट है, ऑर्गेनिक, राइट, इसको यहाँ पे जो ये रिजल्ट दिखा रहा है, राइट, ये वेबसाइट, यहाँ ये वेबसाइट, दूसरी वेबसाइट, ये है ऑर्गेनिक रिजल्ट, जिसको आपको टॉप में लाने के लिए कुछ पे नहीं करना होता है, राइट। वो नेचुरली इवॉल्व हो गए, राइट, टॉप में आ जाती है, बिकॉज ये जो कंटेंट होता है इस पेज के ऊपर, राइट, वो काफी सारे यूजर्स को पसंद आया है। सो दिस कंटेंट इज क्वाइट पॉपुलर, इसीलिए ये टॉप में आ रहा है। इसकी मार्केटिंग फ्री में हो गई है, राइट, थ्रू माउथ टू माउथ, राइट। इसको हम बोलेंगे एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कि आपको कुछ ऐसा क्रिएट करना है, कुछ ऐसी टेक्निक्स, ऐसी गाइडलाइंस को आपको इम्प्लीमेंट करना है, राइट, ताकि आपकी वेबसाइट विदाउट पेइंग एनीथिंग टॉप में आ जाए, टॉप 5 में या टॉप 3 में लिस्टेड हो जाए, ठीक है, दिखाए, राइट। तो हमारी कोशिश यही होगी कि हमारी जो वेबसाइट है, राइट, जो हमारा प्रोजेक्ट है, वो टॉप में आए विदाउट पेइंग अ पेनी,
कुछ भी पे करे बिना, राइट। तो उस टाइप के रिजल्ट को हम कहेंगे ऑर्गेनिक रिजल्ट। तो देखो ऑर्गेनिक रिजल्ट कितने पब्लिश यहाँ पे होते हैं फर्स्ट पेज में, तो ये है 1 सेकंड। इफ यू स्क्रॉल डाउन फिर देखो काफी सारे वीडियोस आएंगे, राइट, यू जस्ट इग्नोर इट। हाँ, ये है थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। यहाँ पे अभी इस पेज के ऊपर टोटल 8 ऑर्गेनिक रिजल्ट मुझे दिखा रहा है, राइट। ओके, अलोंग विथ सेवरल अदर इंफॉर्मेशन, टोटल 8 ऑर्गेनिक रिजल्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, राइट। 1 2 then 3 4 5 6 7 एंड लास्ट 8। ठीक है, पेज 2 में लेट्स सी ऑन पेज 2 कितने आते हैं, लेट्स सी। पहला वीडियो है यूट्यूब का, ये भी ऑर्गेनिक है, हाँ, ये पेड नहीं है, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहाँ पे देखो लास्ट में है एड, फर्स्ट पेज में टॉप में थी, सेकंड पेज में लास्ट पे है, ठीक है। सो 10 ऑर्गेनिक रिजल्ट प्लस 1 एड, ठीक है। लेट्स सी दी थर्ड पेज, यहाँ पे कितने ऑर्गेनिक रिजल्ट है, लेट्स ट्राई टू काउंट इट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड नो एड, ठीक है। तो हर एक पेज में देखो फर्स्ट पेज को आप एक्सक्लूड कर दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देगी, न्यूज भी होंगे, ट्वीट्स भी होंगे, राइट। पीपल ऑल्सो आस्क का भी ऑप्शन होगा, फीचर्ड स्निपेट भी होगा, और भी काफी सारी चीजें आपको वहाँ पे दिखाई देगी फर्स्ट पेज पे, राइट। बट फ्रॉम द सेकंड पेज ऑनवर्ड्स हर एक पेज में 10 ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आपको दिखाएंगे, ठीक है। फ्रॉम द सेकंड पेज ऑनवर्ड्स जितने भी पेज आप देखोगे हर एक पेज में 10 ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है। ओके, नाउ अगेन कमिंग बैक टू पेज 1, राइट। तो लेट्स ट्राई टू सी इट फ्रॉम दिस आर्टिकल, राइट, कि यस और क्या नया यहाँ पे आपको दिखेगा। हाँ, ये है गूगल। You see, for example, let's say you search for the when did Google start, तो गूगल खुद ही अपना मतलब सी आप यहाँ पे लिखोगे, सी लेट मी फर्स्ट गो थ्रू द थ्योरी, राइट। ये है इंस्टेंट आंसर, ये जो यहाँ पे ऑप्शन आंसर आपको दिखाई दे रहा है वो है गूगल इंस्टेंट, राइट। कि आपको कोई भी वेबसाइट क्लिक भी नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल एज ऑफ अमिताभ बच्चन, देखो है यहाँ पे, आपको कोई वेबसाइट ओपन नहीं करनी होगी टू नो द एज ऑफ अमिताभ बच्चन। यहाँ पे वैसे ही आपको दिखाई दे रहा है कि एज ऑफ अमिताभ बच्चन इज 78 ईयर्स, कि ये रहा, राइट। यू डोंट नीड टू ओपन अप एनी वेबसाइट, राइट। यहाँ पे उसका बर्थ डेट भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सारी जो चीजें हैं, राइट, जो आपको गूगल विदाउट ओपनिंग अप दी वेबसाइट इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसको हम कहेंगे गूगल इंस्टेंट, ठीक है। और देखो इसमें और मैं क्या लिखूं, हाँ, रिलीज डेट या लेट्स से रिलीज ईयर, हाँ, रिलीज डेट ऑफ लेट्स से एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, देखा, आपको कोई वेबसाइट ओपन करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। गूगल इंस्टेंट ने आपको आंसर दे दिया कि 24 अप्रैल 2015 को एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन रिलीज हुई थी, राइट। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन भी गूगल आपको कई बार आपको दिखाएगा, ठीक है, हर एक बार नहीं दिखाएगा, राइट। बट समटाइम्स इट डिपेंड्स अपॉन दी क्वेरी, यहाँ पे जो आपने लिखा है वो है क्वेरी, राइट, क्वेरी। तो इट डिपेंड्स अपॉन दी क्वेरी दैट यू आर टाइपिंग कि भाई आपको गूगल इंस्टेंट आंसर देगा या नहीं देगा, राइट। कई बार देता है, कई बार नहीं देता है, सो यू माइट नीड टू ओपन अप द वेबसाइट। लेट्स से अनदर क्वेरी, फाउंडेशन ईयर
of, हाँ, let's say BJP, 6th April 1980 बीजेपी का फाउंडिंग हुआ था। ठीक है, तो ये मतलब इस सारे जो पॉपुलर क्वेश्चंस है उसका आपको गूगल इंस्टेंट आंसर दे देगा। ठीक है, ओके। बर्थ डेट्स ऑफ फेमस celebrities, right? Foundation date of a political party, or let's say popular companies, right? Release date of several movies and other things, काफी सारे हैं। ठीक है, जहां पे गूगल आपको इंस्टेंट आंसर दे देगा। ठीक है, देन यस, नेक्स्ट कम्स ऑर्गेनिक रिजल्ट। वो तो हमने डिस्कस किया, राइट? ऑर्गेनिक रिजल्ट। अब ऑर्गेनिक रिजल्ट में देखो 3 पार्ट आपको दिखेंगे। हर एक ऑर्गेनिक रिजल्ट में आपको ये 3 पार्ट दिखेंगे: पेज टाइटल, यूआरएल ऑफ दैट पेज एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। आप यहाँ पे देखोगे तो देखो ये है ऑर्गेनिक रिजल्ट, राइट? ये ऐड नहीं है, पेड रिजल्ट नहीं है, ये है ऑर्गेनिक रिजल्ट, राइट? तो हर एक ऑर्गेनिक रिजल्ट आप देखोगे, राइट, वहां पे 3 पार्ट आपको दिखेंगे। एक होगा यूआरएल, दूसरा होगा टाइटल और तीसरा होगा मेटा डिस्क्रिप्शन। और कई सारे पेज में आपको उस वेबसाइट की इंटरनल लिंक्स भी दिखेगी। ये है इंटरनल लिंक्स ऑफ दिस पेज। ठीक है, राइट? बाकी देखो आप सारा बाकी सब पेजेस में, सब ऑर्गेनिक रिजल्ट में इंटरनल लिंक नहीं दिखाएगी आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे नहीं है इंटरनल लिंक, राइट? ओनली टाइटल, यूआरएल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन इज बीन शोन टू अस। ठीक है, और बाकी सारे में भी वही दिखाई देता है, राइट? यूआरएल, टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसका देखो अरेंजमेंट चेंज हो गया है। पहले कैसे आता था? पहले ऐसे आता था कि टाइटल फर्स्ट, देन यूआरएल, देन मेटा डिस्क्रिप्शन। अभी लास्ट ईयर से ये चेंज हो गया। वे पहले यूआरएल दिखाएगा, फिर टाइटल एंड देन मेटा डिस्क्रिप्शन। तो आप जो भी टाइटल लिखते हो इन दी प्रोग्रामिंग, इन HTML यू आर स्पेसिफाइंग दी टाइटल टैग, राइट? तो वहां पे आप जो टेक्स्ट लिखोगे इन बिटवीन दी टाइटल टैग, राइट, इन HTML, वो ही यहाँ पे दिखाएगा, right? So be careful with writing the title tag. Most important thing is you should write the meaningful and relevant and short title tag on each and every web page. आपने ये कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा ना, कि भाई मतलब ध्यान दिया होगा बट ऐसे नहीं दिया होगा कॉन्शियसली। हर एक पेज का टाइटल टैग यूनिक होना चाहिए आपके। फॉर एग्जांपल वेबसाइट है, उसमें 10 वेब पेजेस है फॉर एग्जांपल, राइट? देन द टाइटल टैग, द टाइटल ऑफ एवरी पेज मस्ट बी यूनिक, मस्ट बी रिलेवेंट एंड मस्ट बी डिस्क्रिप्टिव एंड शॉर्ट। मतलब जो आपको कहना है, जो भी पेज के ऊपर कंटेंट है, उसके अनुसार आपको टाइटल टैग लिखना है, राइट? ओके, और हर एक पेज का टाइटल टैग यूनिक होना चाहिए, क्योंकि यही है वन ऑफ द रैंकिंग फैक्टर। और देखो रैंकिंग फैक्टर क्या होता है? फॉर एग्जांपल सी, लेट मी आस्क यू वेरी कॉमन सेंस रिलेटेड टू कॉमन सेंस, राइट? ये क्वेश्चन मैं आपको जो पूछने जा रहा हूँ, आपको एग्जाम में, राइट, अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आपको पेपर कैसे लिखना होगा, ये मुझे बताओ, एंड आई विल नोट इट डाउन। चलो, आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आने हैं, ठीक है? तो आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा पेपर लिखने के टाइम? यू टेल मी। नीट एंड क्लीन हो जाए। यस, द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज पेपर जो भी आप लिखो, जैसे भी Sequence लिखो, wise. राइट, ओके, वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। सो क्लीनलीनेस, राइट, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू Sequential manner. केयर अबाउट। देन यस जिगर। Sequential manner. हाँ, आपको पहले Sequence માં બતાવું. क्वेश्चन,
यस, क्वेश्चन 1 लिखना है, देन क्वेश्चन 2, देन क्वेश्चन 3, राइट। 1 बाय 1 क्वेश्चन आपको लिखना है ताकि पेपर चेकर को आसानी हो। ओके, देन Description according marks. हाँ, Description according marks. yes, you need to write down the answer, right, as per the title mark. according to the answers. हाँ, सॉरी जिगर, Title according to the Reporters. टाइटल लिखना है सभी आंसर के ऊपर, ऐसा। heading का तो title છે. हेडिंग, हाँ, यस, heading should give proper heading. Then of course the first and foremost important thing is write you know Readable also है. genuine answers, right, or let's say true answer. ऐसा नहीं है कि पिक्चर की स्टोरी लिख के आ गए। ओके, सो सर नहीं आता तो लिख के आ सकते हैं. हाँ, so that is why, see, by keeping your future answer, मैंने ये पॉइंट लिख ही दिया था, ठीक है। ओके, सो यस, देखो ये सारी चीजें हैं जो आपको अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं, राइट, इन दी एग्जाम। सो दिस आर कॉल्ड रैंकिंग फैक्टर्स, ठीक है। ये सारे आपके हैं रैंकिंग फैक्टर्स, राइट। अगर ये सारे चीजें आप फॉलो करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। यू माइट टॉप इन द क्लास और इन द कॉलेज और इन द यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये सारे हैं रैंकिंग फैक्टर्स जो आपको टॉपर बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आपको गूगल में टॉप पे आना है, राइट, फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट पोजीशन पे आपको दिखाई देना है आपकी वेबसाइट को, तो उसके लिए भी रैंकिंग फैक्टर्स है, काफी सारे हैं, काफी सारे हैं, राइट। एक दो नहीं है, हंड्रेड्स में है, 180 और 200। नाउ दैट थिंग इज नॉट नो कि भाई गूगल कितने रैंकिंग फैक्टर अपने एल्गोरिदम में लगाता है, राइट, टू जज विच पेज विल अपीयर वेयर। ये किसी को पता नहीं है एक्चुअली, ठीक है, कि 180 है रैंकिंग फैक्टर्स, 200 है या 200 प्लस है, ठीक है। बट है, काफी सारे रैंकिंग फैक्टर गूगल ने एल्गोरिदम में डाले हैं, राइट, जो ये तय करेगा कि आपकी वेबसाइट है, राइट, वो कहाँ पे दिखाई जाएगी, फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे, थर्ड पेज पे, या फिर उसके भी पीछे, ठीक है। तो व्हाट आई मीन टू से इज कि वन ऑफ द रैंकिंग फैक्टर इज टाइटल टैग। अगर आपको टॉप करना है गूगल सर्प में, गूगल सर्प में, राइट, देन वन ऑफ द रैंकिंग फैक्टर इज टाइटल टैग। आपको टाइटल अच्छी तरीके से लिखना है, राइट, बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ द पेज। आपने आर्टिकल लिखा है लेट्स से हैप्पीनेस के ऊपर, राइट, और टाइटल टैग लगाया है समथिंग लाइक यू नो नॉट रिलेवेंट, एक्चुअली रिलेवेंट नहीं होता है हैप्पीनेस है, ऐसा कुछ टाइटल लगाया लेट्स से अबाउट अस, राइट। टाइटल टैग आपने लिखा है अबाउट अस और जो आर्टिकल लिखा है वो है हैप्पीनेस के ऊपर, तो वो दोनों मैच नहीं हो रहा है, इररिलेवेंट है एक दूसरे से, राइट। तो टाइटल टैग आपको लगाना है किस हिसाब से कि वो पेज के ऊपर कंटेंट कौन सा है, आर्टिकल क्या लिखा है आपने, उस तरह से टाइटल टैग आपको लगाना है। then only you will have chances to be shown in the top of this SERP, right? So let me show you some of the examples, live examples, right? देखो यहाँ पे ये जो टाइटल टैग है, राइट, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या टाइप किया है, फाउंडेशन ईयर ऑफ बीजेपी। कीवर्ड मेरा क्या है, ये दिस इज द कीवर्ड फाउंडेशन ईयर ऑफ बीजेपी, ये रहा, ये था मेरा कीवर्ड, राइट, दैट कीवर्ड और लेट्स से दैट क्वेरी, फाउंडेशन ईयर ऑफ बीजेपी,
अब देखो जितने भी पेजेस अपीयर हो रहे हैं ना, उसका हम टाइटल टैग का इवेल्युएशन करते हैं। चलो कि भाई उसने टाइटल टैग क्या लिखा है। विकिपीडिया का टाइटल टैग है भारतीय जनता पार्टी विकिपीडिया, ठीक है। ये है उसका टाइटल टैग जो रैंक 1 पे अपीयर हो रहा है। कॉपी टेक्स्ट, राइट। ये है पेज 1 का टाइटल टैग। देन लेट्स सी द टाइटल टैग ऑफ पेज 2, भारतीय जनता पार्टी हिस्ट्री आइडियोलॉजी एंड बिलीफ्स ब्रिटानिका, right? So this is the title tag of page 2 listed at the position 2. And third, BJP's foundation day brief history of the achievements and उसके बाद कट हो रहा है। तो देखो आप ऐसे एनालिसिस करोगे ना, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि जो हमारी सर्च टर्म दी फाउंडेशन ईयर ऑफ बीजेपी, वो बीजेपी मीन्स भारतीय जनता पार्टी ऑफ कोर्स। तो ये विकिपीडिया की तो रेपुटेशन ही ऐसी है कि हर एक बार वो टॉप पे ही आएगा, ठीक है। ऐसे होता है ना, देखो फॉर एग्जांपल इन रियल लाइफ भी ऐसा होता है कि रजनीकांत की मूवी रिलीज हुई, ठीक है, तो साउथ इंडिया में वो हिट जाने ही वाली है। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। क्योंकि उसकी रैपो इतनी है, उतनी पॉपुलर, उसकी पॉपुलैरिटी की इतनी है कि भाई वो हिट जाएगा ही जाएगा, 100% जाएगा, राइट। तो वैसे ही विकिपीडिया ने ओवर द टाइम इतनी अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है सभी को, राइट, कि सर्च इंजन के नजरिए से विकिपीडिया इज दी यू नो वेरी रेप्यूटेबल वेबसाइट। तो हमेशा विकिपीडिया का पेज है वो टॉप में ही आएगा, राइट। तो ये भूल जाओ, विकिपीडिया ये तो रेपुटेशन की वजह से फर्स्ट ही आएगी। नाउ यू सी द सेकंड एंड थर्ड रिजल्ट, राइट। ओके वेट अ मिनट। ओके हाँ, सो नाउ सेकंड रिजल्ट, भारतीय जनता पार्टी हिस्ट्री आइडियोलॉजी एंड बिलीफ्स, राइट। तो देखो यहाँ पे इन लोगों ने हिस्ट्री वर्ड यूज किया है, हिस्ट्री ऑफ भारतीय जनता पार्टी। तो हिस्ट्री में तो ये सबसे पहली चीज आएगी कि उसका फाउंडेशन ईयर कौन सा है, वहां से तो हिस्ट्री स्टार्ट होती है ना बीजेपी की। तो देखा काफी किस तरह से आपको टाइटल टैग में क्या कीवर्ड डालना है, राइट। और ये थर्ड रिजल्ट देखो, बीजेपी फाउंडेशन डे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द अचीवमेंट्स एंड समथिंग, ठीक है। तो देखो इस तरह से आपको टाइटल टैग लिखना है, ठीक है। तो ही जाके ये फाउंडेशन ईयर ऑफ बीजेपी कोई टाइप करेगा गूगल में, ये कीवर्ड डालेगा, तो आपकी पेज दिखाई देगी, आपकी आपका जो वेब पेज है, राइट, जो आपने लिखा है बीजेपी के ऊपर, राइट, तभी जाके वो टॉप में आएगा। जब आप टाइटल टैग अच्छा लिखोगे तब, मीन्स उसके अलावा भी काफी सारे रैंकिंग फैक्टर्स है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है, राइट। बट title tag is again, I'm saying this is one of the ranking factor जो आपको अच्छे रैंक दिला सकता है गूगल में, राइट। समझ में आ रहा है। सो देखो टाइटल टैग कितना इंपॉर्टेंट है। अभी आपको फॉर एग्जांपल अभी आपको पता चला कि टाइटल टैग इतना इंपॉर्टेंट है, राइट। अब तक आप क्या कर रहे थे, सिंपली डेवलपिंग द वेबसाइट, सिंपली राइटिंग एनीथिंग इन द टाइटल टैग, राइट। टाइटल टैग में कुछ भी लिख दे रहे होंगे अभी तक, बट नो, दैट इज नॉट द वे, राइट। टाइटल टैग आपको बहुत ही रिसर्च करके काफी, मतलब जो भी आपको, मतलब आपको ऐसा बंदा पता है कि भाई ये है ना, वो एक या दो लाइंस इतनी अच्छी लिख देगा मुझे, राइट, कि मैं उसको टाइटल टैग में डाल दूंगा। सो सीक हेल्प ऑफ दैट पीपल, राइट, जो अच्छी तरीके से आपको टाइटल टैग बना दे। ओके,
सो टाइटल टैग बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे कई सारे रैंकिंग फैक्टर्स है जो हम डिस्कस करेंगे इन दी अपकमिंग लेक्चर्स, राइट? फाइन, नाउ एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? ओके, सो लेट्स गो अहेड। हाँ, तो ये हो गया कि हर एक ऑर्गेनिक रिजल्ट में आपको 3 चीजें दिखाई देगी। एक होगी पेज टाइटल, दूसरी होगी पेज यूआरएल, तीसरा होगा मेटा डिस्क्रिप्शन, राइट? फिर आती है यस, इन सम ऑफ द ऑर्गेनिक रिजल्ट यू मे सी द डेट ऑफ पब्लिश्ड डेट, कि वो आर्टिकल कब पब्लिश हुआ था। देखो यहाँ पे है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सी 6 अप्रैल 2019 को ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था इस न्यूज़पेपर में, राइट? सारे ऑर्गेनिक रिजल्ट में नहीं दिखाई देगा, राइट? यहाँ पे भी है, देखो, राइट, यहाँ पे भी है। तो ये एक्चुअली फिक्स नहीं है, राइट? बट कई सारे आर्टिकल्स में आपको पब्लिश्ड डेट भी देखने को मिलेगी और कई सारे में नहीं दिखेगी, राइट? इट डिपेंड्स। ओके, देन यस, कई बार देखो आपको साइट लिंक्स भी यहाँ पर दिखाई देगी, साइट लिंक्स। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं टाइप करूँ लेट्स से रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस फाउंडेशन, चलो ठीक है, देखो यहाँ पे साइट लिंक्स हमें दिखाई देगी है, राइट? कैरियर्स पेज है, कॉन्टेक्ट अस पेज है, एजुकेशन पेज है, हेल्थ है, हु आर वी, व्हाट डू वी डू, राइट? अगर हमारे कॉलेज का भी डालेंगे तो भी ये दिखाई देगी हमारी साइट लिंक्स। नहीं आ रही है? ओके, मोबाइल में चेक करना, मोबाइल में आती है, दैट आई नो वेरी वेल, राइट? सीजर में भी सी है। ओके, अगर टीसीएस में डालो तो वहाँ पे भी साइट लिंक आई थिंक दिखाएगी। सी कैरियर्स नाम का एक पेज है, फ्रेशर्स हायरिंग का एक पेज होगा इस वेबसाइट पे, जॉब्स का पेज होगा एंड मेनी अदर, राइट? तो यही साइट लिंक्स, राइट? ओके, अभी देखो और भी काफी सारी चीजें जो मुझे आपको यहाँ पे दिखानी है कि वो सर्फ में मौजूद होती है, राइट? सो वी विल टॉक अबाउट दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, now any question from your side, then you can ask, otherwise I'll conclude my lecture. No question? Fine, so see you tomorrow, right? And I'll download the attendance from the teams, right?